নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিটিসি পৰিষদ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইউপিপিএলৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে লগতে সাংসদ গৰাকীয়ে বিপিএফে 17 বছৰে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিজেপিয়ে 5-10 লাখকৈ টকা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মী কিনি থকা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে অভিযোগ আনিছে নবকুমাৰ শৰণীয়াই বিটিসিত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে অবৰৰ বাবে কাম কৰা একমাত্ৰ দল বুলি তেওঁ দাবী কৰে আৰু লগতে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 17 বছৰে বিটিসিত কি হল 17 বছৰে কি উন্নয়ন হল এই সম্পৰ্কে জনাইছে আৰু বিপিএফে 17 বছৰে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ অভিযোগ আনিছে বিজেপিয়ে 5-10 লাখ টকাত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মী কিনি থকা বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছে নবকুমাৰ শৰণীয়াই আর মই কইছো যে যদি এবার আমি কাউন্সিল ইলেকশন মানে কি কয় জিকিব নোৱাৰো তার সমস্ত দায়িত্ব মই লম আর মই কইছো যে আমি পলিটিক্যালি সন্ন্যাস লম কারণ আমি রাজনীতিটো কেবল ক্ষমতা দখল করার কারণে অহা নাই গণ সুরক্ষা পার্টি এখানে বনোৱা হৈছে যে বিটিসিত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাখিনি যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰো সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক এটা সংগ্ৰামৰ অংশ বিশেষ বুলি ধৰি লৈছো আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰিলে আমার এই যিখিনি দাবী অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন আমি ভাবো এইটো 10 বছৰ নালাগে কিছুমান উইদিন 6 মান্থ কিছুমান 1 বছৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰিম এই কথা জনাইছো আৰু আমাৰ যে সকল টিম আছে সেই টিম সকলক এই ক্ষেত্ৰত একমত মই বাৰবাৰ কৈছো যে তৃতীয়তে আমি উদ্যোগসমূহক যি ৰাজ সাহায্য বা ট্যাক্স এক্সামশন দিও তাকো আমি বাতিল কৰি থৈছিলো আজি আমি যিখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছো তাৰ অধীনত উদ্যোগসমূহে উদ্যোগিক নীতি অনুসৰি পাই থকা ৰাজ সাহায্য বা কৰ কাটলৰ ৰেহাই আজিৰ পৰা পুনৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব 20 এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে বন্ধ হৈ আছিল ঠিক একেধৰণে বিধায়কসকলৰ উন্নয়নৰ পুঁজিৰ ওপৰতো যি বাধা নিষেধ আছিল তাকো আজিৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান মাত্ৰ কেইটামান অস্ত্ৰিটি মিজাৰ চলি থাকিব বেন অন পাৰ্চেজ অফ ভেহিকলছ নতুন গাড়ী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা চলি থাকিব কনফাৰেন্স ৱৰ্কশ্বপ সেমিনাৰ ফেয়াৰ এইখিনি নহব এক্সিকিউটিভ ক্লাছত মুখ্যমন্ত্ৰীক বাদ দি আনসকলে পৰিবহন কৰিব নোৱাৰিব 5 ষ্টাৰ হোটেলত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আদি হ'ব নোৱাৰিব বিদেশ যাত্ৰা বাৰণ কৰি থোৱা হৈছে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ যি দৰমহাত আমি এটা কাট হৈছিল সেইটো চলি থাকিব বাকি প্ৰশাসন বা চৰকাৰী তন্ত্ৰৰ লগত থকা সকলো অস্ত্ৰিটি মিজাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে যাতে উন্নয়নমূলক কামসমূহে এটা গতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু মই ভাবো যে এই মডিফাইড সিদ্ধান্ত অহাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগে তেওঁলোকৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুযায়ী বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণত তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰিব দ্বিতীয়তে মই যোৱা সাংবাদিক মেলত কোৱাৰ দৰে যে আমি শিক্ষক নিযুক্তিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন যোৱাকালি আমি আৰম্ভ কৰিছো এই নতুন বিজ্ঞাপনৰ অধীনত প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত 1100টা হিন্দী শিক্ষকৰ পদ 3941টা সহকাৰী শিক্ষকৰ পদ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাত 5746টা পদ সৰ্বমুঠ 10789টা পদৰ বিজ্ঞাপন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আমি ডিসেম্বৰ মাহৰ আগতে এই নিয়োগ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি কাম হাতত ল'ম আৰু এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিয়োগ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়টো সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা এই মাহৰ শেষৰ ফালে আন এক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে
প্ৰাথমিক শিক্ষাত হিন্দী পদৰ বাবে 1102টা, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগতে 3941টা সহকাৰী শিক্ষক আৰু সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন বা হাই স্কুলত 5746টা পোষ্ট। মাধ্যমিক শিক্ষা বুলি কৈছো, সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন 3900, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক আমাৰ এটাই ডাইৰেক্টৰেট LPME। সো টোটেল 10,789টা পদৰ বিজ্ঞাপন আমি প্ৰকাশ কৰিছো আৰু ইয়াৰ অধীনত ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই পদসমূহৰ আমি নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু এই মাহৰ শেষৰ ফালে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ আন এক বিজ্ঞাপন দিব। মই 3টা ফেজ বুলি কিয় কৈছো, যোৱা কেইদিনমান আগতে এটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ল, আন এটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ আজি বিজ্ঞাপন ওলালে, যিটো অহা ডিসেম্বৰ মাহৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আন এটা নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন সৰ্বশিক্ষা অভিযানে এই মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশ কৰিব, যাৰো নিযুক্তি হয়তো আমি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। এই নিযুক্তিখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে আমাৰ যিটো 50,000 নিযুক্তিৰ এটা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম। মই কেইটামান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰজেক্ট আৰু কেইটামান নতুন আঁচনি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিডনী ডায়ালিচিছ বা নেশ্যনেল ডায়ালিচিছ প্ৰগ্ৰেম এটা চলাই আছিলোঁ, যিটো কিডনী ৰোগীসকলক আমি বিনামূলীয়াকৈ কিডনী ডায়ালিচিছ কৰোঁ। আৰু আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে কওঁ যে 20টা প্ৰতিষ্ঠানত আমি 20খন অনুষ্ঠানত আমি ডায়ালিচিছ সেৱা আগবঢ়াই আহিছিলোঁ যোৱা বছৰটোত, আৰু 55,168জন ৰোগীয়ে বিনামূলীয়াকৈ হিমোডায়ালিচিছ আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰি আছে। ৰোগী বুলি কওঁতে হেড কাউণ্টত কম হ'ব, কাৰণ এজনে বাৰে বাৰে লৈছে, কিন্তু 55,000টা চিটিং বা 55,000টা হিমোডায়ালিচিছ আমি বিনামূলীয়াকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰ্ছিং হোমসমূহে পেচেণ্টক টেষ্ট নকৰাকৈ কিডনী ডায়ালিচিছ কৰিবৰ বাবে কষ্ট পায়। তাৰ ফলত ডায়ালিচিছত থকা বহু কিডনী পেচেণ্টে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলে। বৰ্তমানে চলি থকা 20টা অনুষ্ঠানৰ উপৰিও আজি মই আৰু 20টা অনুষ্ঠানত বা 20খন চিকিৎসালয়ত এই বিনামূলীয়া কিডনী ডায়ালিচিছ বা হিমোডায়ালিচিছ আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। মোৰ আজি কৰা ঘোষণা অনুযায়ী নতুন কৰি ৰবি বড়ো চিভিল হস্পিটেল বাস্কা, এছএমবেড চিভিল হস্পিটেল কাছাৰ, MMCH হস্পিটেল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল, জাগিৰোড কাগজ কলত থকা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, গহপুৰ মহকুমা চিকিৎসালয়, মাৰ্ঘেৰিটা চিভিল হস্পিটেল, হাইলাকান্দিৰ SM ৰয় চিভিল হস্পিটেল। सूर्या सीमेंट व्यवहार करिले घर 50% अधिक मजबूत है। आपनार घर अटूट हले हब अटूट असम। सूर्या सीमेंट अटूट घर अटूट असम। আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি গ্লাছ, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ।
আগবঢ়ালে अनमोल मारी प्लास हॉलोनी नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है रजनी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में बने 1,75,000 आवासों का करेंगे उद्घाटन। योजना के तहत देश भर में अब तक 1,14,00,000 गरीबों को मिल चुका है घर। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आज से परिचालन पूरी तरह से हुआ शुरू। सुबह 6 से रात 11 बजे तक मेट्रो सेवाएं होंगी उपलब्ध। एयरपोर्ट मेट्रो सेवा भी होगी शुरू। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का दूसरा संस्करण किया जारी। राज्यों में गुजरात व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार टॉप पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सोने की खदान धंसी। करीब 50 लोगों के फंसे होने की आशंका। भारी बारिश के चलते हुई घटना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा की। मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बताया ऐतिहासिक क्षण। और अलेक्जेंडर ज़ेवरोव यूएस ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने। 1994 में पहुंचे माइकल स्टिच ने खेला था खिताबी मुकाबला। खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज गरीबों के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज उनके लिए 1,75,000 आवासों का उद्घाटन करेंगे। अब तक इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 1,14,00,000 घर पहले ही बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से फायदा मिल चुका है। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गृह प्रवेशम में भी शामिल होंगे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री या लाभार्थी को 100% अनुदान राशि के रूप में 1.0 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 40% राज्य सरकार। इस योजना के तहत 2022 तक देश भर में 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण की परिकल्पना है। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन आज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक के लिए फिर से शुरू हो गया है। आज एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में वापस आ गई है। दिल्ली मेट्रो ने लोगों से यात्रा के दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से भी बचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवा का पुनर्संचालन चरणबद्ध तरीके से कुछ दिनों पहले शुरू किया गया था। पहले चरण के तहत रैपिड मेट्रो, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, वायलेट और ग्रीन लाइंस पर ट्रेनों का संचालन निश्चित अवधि के लिए शुरू किया गया। दूसरे चरण में मैजेंटा और ग्रे लाइंस पर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। सरकार ने शुक्रवार को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार सुगमता, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बिजनेस और फाइनेंस को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की दिशा में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश उभरते हुए राज्य हैं। Some of the leading states with well-established startup ecosystem such as Karnataka, Gujarat, Orissa, Kerala
have scaled up their startup initiatives to benefit increasing number of startups. Some states such as Maharashtra, Haryana, Uttarakhand, Jharkhand have made significant developments and favorable policy changes in their startup ecosystems. Emerging startup ecosystems, for example, in Himachal Pradesh, Mizoram, Sikkim, Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh have been successful in creating a roadmap for the growth of their startup ecosystem. इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड संकट के दौरान भारतीय स्टार्टअप अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू सामान घर घर पहुंचाने और लोगों की अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के बारे में अनेक स्टार्टअप ने नए विचारों के साथ समाधान दिए हैं। India, along with the rest of the world, has been struggling to overcome this pandemic, COVID-19, which has destabilized healthcare, destabilized economies across the world. Even during this period, our startups have come up with brilliant ideas, solutions to the myriad problems that the country and the world face. In fact, startups associated with online teaching have really done India proud with the rapid scale-up with which they have been able to expand their operations, have a deep engagement with academia and with students across the country, which is reflected in the huge valuations that many of our online training and teaching startups have received in recent times. भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को वर्चुअल मोड के जरिए द्विपक्षीय 2+2 बैठक की। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना सहित सभी रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19, आतंकवाद से मुकाबला करने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने 18 दिसंबर 2019 को वॉशिंगटन में 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हितों के लिए सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में भारत की स्थिति के महत्व को भी रेखांकित किया। वहीं सैन्य से सैन्य सहयोग और अन्य रक्षा प्राथमिकताओं को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच इस साल के अंत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। 2 दिनों में जेपी नड्डा कई महत्वपूर्ण बैठक करने के बाद बिहार के 2 जिलों का भ्रमण भी करेंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई चुनाव संचालन समिति बैठक में जेपी नड्डा ने चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में बिहार बीजेपी की प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। नड्डा आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत अनेक स्थानों पर किसानों और मछुआरों से मिलेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से रूबरू भी होंगे। इसी के साथ बीजेपी के चुनाव अभियान का भी शुभारंभ हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नामांकन पत्रों में उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के आपराधिक विवरण के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित करना होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर करना होगा।
तीसरी बार ये प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने में मदद मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र भरने वाले लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को भी ऐसा प्रचार प्रसार करना होगा। इस संबंध में अब तक जारी किए गए सभी निर्देशों का सारांश और सभी प्रारूप संबंधित पक्षों के हित में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इससे मतदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में छूट दे दी है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी पेंशनधारक इस वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे। 80 या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। मौजूदा कोविड संकट और कोरोना वायरस के संक्रमण से बुजुर्गों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों से कहा गया है कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत पेंशन धारक से जीवन प्रमाण पत्र लेने के नए तरीके खोजे जाएं ताकि बैंक में भीड़भाड़ से बचा जा सके। केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशन धारक को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में करीब 59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में यह रिकॉर्ड वृद्धि है। इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 4 लाख 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 10 करोड़ 45 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 35,42,663 हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर 77.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 70,880 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.67% हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 9,43,480 है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 2 करोड़ 86 लाख 38 हजार के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 लाख 18 हजार के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66 लाख 35 हजार के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख 97 हजार के पार है। वहीं ब्राजील के बहाया राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील में कोरोना से 42,83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी कांगो में एक सोने की खदान ढहने से कम 50 लोग मारे गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व में कामितुगा के पास भारी बारिश के कारण एक सोने की खान ढहने से ये घटना हुई है। कांगो में खान दुर्घटनाएं बेहद आम है, जिसके चलते यहां हर साल दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और रजनी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।